Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 14. The name of the paper is semantics. The last topic of this paper is componential analysis. This lecture is specifically for the students of BS 4th semester GDC Pubby and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. The topic is componential analysis, and this is the last topic of our paper, semantics. If you have a look at this topic, componential analysis, you find out that you already have some of the knowledge of this topic from your YOL second semester paper, the study of language by George Yole. If you look at page number 113, you find out the topic semantic features. Semantic features or componential analysis is almost similar. You can use this information there, and we have used, for example, this area can be found in that discussion. I will come to this again when I read this for you. This word componential is from the word component. Component means part. So in this case, we actually analyze a word into its components part or into its features. Talking about the study of language again, we call these component parts as semantic features. Now we are calling them as components. So this analysis is the analysis of the components of a word, or more specifically of a lexeme. If you want to find out what lexeme is, then you should come here to this page where you find out what lexeme is. This is the definition of lexeme, and I have given it to you. Study it for yourself. If you find any problem, let me know. I have explained it in the classroom also, and once again, if there is any problem, let me know. This topic is not relevant. You can leave it out, this one. Componential analysis, as I said, is the last topic. So this is the analysis of the sense of a lexeme. You know what is meant by sense relations, as you have discussed, into its component parts. So you try to find out the sense of a lexeme with the help of the component parts or with the help of the semantic features. So this is what we are doing here. Quite easy. If you go back to this and study it for yourself, this will look quite easy for you. Another name for componential analysis is lexical decomposition. Decomposition also means dividing something into its parts for analysis. This division is called decomposition. This is lexical decomposition, componential analysis, and also to find out the semantic features. Now, how do we do this componential analysis? For example, if you take these words, boy, girl, man, and woman, we take one thing common in all of them, that is, all of them are human beings. If you take these two out of these four, we find out that this quality, male, is common in these two. If we take girl and woman, we find out that the quality common in them is female, that is, both of them are female. If we take man and woman once again and try to find out another componential point, another component, we find out that in men and women, something which is common is that both of them are adult. And if you try to find out another quality which is common in boy and girl, that is that both of them are non-adult. So this is something which we have already done in YOL in this area on page number so you can see that these are the common qualities in them. In these four, the common quality is that all of them are human. In these two, the common quality, another common quality is male.
In these two, another common quality is female. In these two, the other common quality is that both of them are adult. And in these two, boy and girl, the next quality is that both of them are non-adult. And as I said, you can find this out in Georgial too. So therefore, the qualities which we collect from this above discussion for man are these: that man is human, as is woman too. Man is male, which the woman is not, and man is adult, which the woman also is. So these two qualities, human and adult, are common in man and woman. Woman is also human like man, and it is female unlike man, and it is adult just like man. Coming to this next quality, boy, we find out that boy is human just like man and woman. It is male just like man, but it is non-adult unlike both man and woman. In the componential qualities or the components of human girl, we find out that this quality is just like boy, woman and man, human. She is female just like woman, and she is non-adult like boy and unlike man and woman. These components, these are called sense components, and they are also referred to as universals. They are called universals too, these components, or they are also called basic atomic concepts. These are the names, basic smallest concepts, as you can say. So these are the different characteristics. I will read these for you and try to translate it. इसको उर्दू में भी समझे तो फिर मैं इसको पढ़ के भी आपको सुनाता हूँ. और यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि एक तरीका के सेंस रिलेशंस जो लेक्सीम्स के बीच में सेंस रिलेशंस हैं उनको सही मालूम करने का ये है कि हम इसकी कंपोनेंशियल एनालिसिस करें. सेंस रिलेशन में जो कि लेक्सीम्स के या अल्फाज के बीच में होती है उसको मालूम करने का एक सही तरीका ये भी है कि हम कंपोनेंशियल एनालिसिस करें या सेमेंटिक फीचर्स मालूम करें. तो सेमेंटिक फीचर्स हम कैसे मालूम करते हैं, एनालिसिस हम कैसे करते हैं. हम सेंस ऑफ लेक्सीम को कंपोनेंट पार्ट्स में डालते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं. उसको यूँ समझ लें कि टुकड़ों में तकसीम करते हैं ताकि एनालिसिस के लिए आसान हो. इसको लेक्सिकल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं. चूँकि तकसीम करना है तो तकसीम करने को डिकम्पोज भी कहते हैं. ये लेक्सिकल डिकम्पोजिशन भी कहलाता है. और ये हम कैसे करते हैं, मसलन ये चार अगर हम ले लें, बॉय गर्ल मैन एंड वुमन, तो इनमें सिर्फ एक क्वालिटी आपको ऐसी मिलेगी जो कॉमन है और वो है ह्यूमन. अगर फिर इनमें से हम ये पहले दो ले लें, बॉय एंड मैन, ये बॉय और मैन ले लें, तो इसमें एक दूसरी क्वालिटी कॉमन है मेल की. अगर हम गर्ल एंड वुमन ले लें तो इसमें फीमेल की. अगर हम मैन एंड वुमन ले लें तो इसमें एडल्ट की. और अगर हम बॉय एंड गर्ल ले लें तो इसमें नॉन एडल्ट की. ये मज़ीद क्वालिटीज़ हैं. तो ये हमारे पास मैन की ये क्वालिटीज़ आ जाती हैं, वुमन की ये क्वालिटीज़, बॉय की ये और गर्ल की ये. इन क्वालिटीज़ को जिनको हमने कंपोनेंट्स भी कहा, इनको यूनिवर्सल्स भी कहते हैं. इनको बेसिक एटॉमिक कॉन्सेप्ट्स का नाम भी दिया जाता है. तो अब हम इसको रीड करते हैं. ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस पेपर का. यूँ ये पेपर ख़त्म हो जाएगा. हम फिर एक मरतबा डिस्कस करेंगे कि हम सिलेबस देखें और देखें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं. तो इसको ट्रांसलेट करते हैं. द वे ऑफ मेकिंग एब्सोल्युटली प्रिसाइज द सेंस रिलेशंस. एक तरीका के सेंस रिलेशंस को आप पहले ही जानते हैं. सेंस रिलेशन जिस तरह सिनोनिमी, एंटोनिमी, हाइपोनिमी, पॉलिसेमी, ये भी सेंस रिलेशन है. लेकिन इन सेंस रिलेशंस को मुकम्मल तौर पर सही बनाने के लिए ये सेंस रिलेशंस दैट होल्ड अमंग लेक्सीम्स, जो लेक्सीम्स के बीच में होता है, वो ये है इज बाय मीन्स ऑफ कंपोनेंशियल एनालिसिस. तो ये तब
एब्सोल्युटली प्रिसाइज होगा सेंस रिलेशंस जब हम कंपोनेंशियल एनालिसिस के सेमेंटिक फीचर्स मालूम करें, क्योंकि इससे चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है, लेकिन इसके अपने प्रॉब्लम है, वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ताहम इससे चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है. एज द नेम इम्प्लाइज, जिस तरह ये नाम इस नाम में छुपी बात है कंपोनेंशियल एनालिसिस में, दिस इन्वॉल्व्स, इस कंपोनेंशियल एनालिसिस में शामिल है द एनालिसिस ऑफ द सेंस ऑफ ए लेक्सीम. हम लेक्सीम के जितने सेंसेस हैं उनको एनालाइज करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, और इसके कंपोनेंट्स में और हिस्सों में डिवाइड करते हैं. इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, पहले से ये शुरू है, तो हिस्ट्री इसकी लंबी है कंपोनेंशियल एनालिसिस की या सेमेंटिक फीचर्स की, जैसे आपने पढ़ा है. बट इट इज़ ओनली रिसेंटली दैट इट हैज़ बीन एम्प्लॉयड, लेकिन रिसेंट ज़माने में इसको इस्तेमाल किया गया है एक्सटेंसिवली ज़्यादा बाय लिंग्विस्ट ने. एन अल्टरनेटिव टर्म, एक मुतबादिल टर्म और कंपोनेंशियल एनालिसिस इज लेक्सिकल डिकम्पोजिशन. तो एक मुतबादिल टर्म लेक्सिकल डिकम्पोजिशन भी है. Let us begin with a much used example. ये एग्जाम्पल मच यूज्ड है क्योंकि मैंने आपको बताया ये एग्जाम्पल योल ने भी इस्तेमाल किया है और उसने भी यही कैरेक्टरिस्टिक ली है. अगर आप ये जगह देखें और इसने देखें ये बॉय इस्तेमाल किया है बिल्कुल इसी तरह, और इसी तरीके से वुमन भी इस्तेमाल किया है, मैन भी इस्तेमाल किया है, और ये सारा इसमें मौजूद है. देखें ये मैन, गर्ल, वुमन, बॉय. इस वजह से वो कहता है कि ये मच यूज्ड है. The words boy, girl, man and woman all denote human beings. सारे human beings हैं, common quality. We can therefore extract from the sense of each of them. Extract निकालना, इन सारों के सेंस से एक चीज़ हम ले सकते हैं. The common factor human, तो इनमें common factor है और वो human है. Similarly, we can extract from boy and man the common factor male, तो इन दोनों में male है, and from girl and woman the common factor female, इनमें female है. As for man and woman, ये दोनों they can be said to have as one of their factors the sense component. एक और sense component इसमें मुश्तरक है, adult. In contrast with boy and girl, इसका तजाद boy and girl के साथ है which like adult, जो adult नहीं है, और alternatively contain non-adult, तो adult नहीं है या non-adult दोनों एक बात है. The sense of each of the four words can thus be represented as the product of three factors. तो हर एक ये जो ऊपर अल्फाज है ये तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट बनेगा. एक मैन के तीन फैक्टर्स ये हैं, वुमन के ये हैं, बॉय के ये हैं और गर्ल के ये हैं. तो सारों में जो कॉमन है वो ह्यूमन है, और गर्ल और वुमन में जो कॉमन है वो फीमेल है, और इसी तरीके से कुछ कॉमन कुछ अनकॉमन. The sense components are referred to as universals. Sense components को universals और basic atomic concepts का नाम भी दिया जाता है. We can distinguish a positive and a negative value. ये अब तरीका वो है जो आप कर चुके हैं योल में. ये इसको बाइनरी प्रोसेस कहते हैं कि अगर कोई चीज़ एनिमेट है तो प्लस एनिमेट, अगर कोई चीज़ एनिमेट नहीं है तो माइनस एनिमेट. तो अगर क्वालिटी है तो प्लस, क्वालिटी नहीं है तो माइनस. तो ये क्या रहा है, we can distinguish a positive and a negative value of the two valued variable. दो वेरिएबल ये जैसे मैन है वुमन है वेरिएबल्स हैं, अगर इनके बीच में कुछ वेरिएबल है तो वो प्लस और माइनस में आएगा. एडल्ट प्लस और एडल्ट माइनस, तो अगर है तो प्लस एडल्ट, नहीं है तो माइनस एडल्ट. whose two values are plus adult and minus adult. तो ये इसकी दो वैल्यूज हैं. We now have as a basic presumably atomic component, तो अब इसके atomic component, basic component, सबसे छोटे component ये हैं, एक adult है together with its complementary minus adult. तो ये adult plus है, adult minus है, ये दो हमारे पास आएंगे adult के लिए, या माइनस होगा या प्लस.
If male and female are also complementary, complementary जो इसको complete करते हैं, अगर मेल फीमेल भी कम्प्लीमेंट्री है, वी कैन टेक वन ऑफ देम एज बेसिक, तो एक को बेसिक ले लेंगे मसलन मेल को या फीमेल को, तो दूसरे को हम कहेंगे माइनस। बेसिक का मतलब ये है कि यहाँ आपने जिसके साथ प्लस लगाया वो बेसिक है, तो प्लस एडल्ट जब एडल्ट है, माइनस एडल्ट जब एडल्ट नहीं है। अगर आप मेल को लेते हैं, बाज़ औरतें पसंद नहीं करती कि मेल को बेसिक ले लें, कहते हैं फीमेल को बेसिक लें, लेकिन बहरहाल अगर आप मेल को बेसिक लें तो ये प्लस मेल, और जो फीमेल होगा फिर ये माइनस मेल होगा, माइनस मेल उसको कहेंगे, फीमेल नहीं कहेंगे। इसी वजह से औरतें खफा होती हैं कि हमें क्यों यूँ कहा है, अगर हमें फीमेल कहा जाए और मर्द को माइनस फीमेल कहा जाए तो उनके ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। फेमिनिस्ट कहते हैं, सारे नहीं कहते, सिर्फ फेमिनिस्ट कहते हैं। तो वी कैन टेक वन ऑफ देम एज बेसिक, एक बेसिक होगा, and from the other from it by means of the same negation operator। तो दूसरे फॉर्म से वो बेसिक इसलिए होगा कि हमने negation operator लगा दिया है माइनस। As far as the vocabulary of English is concerned, जहाँ तक इंग्लिश की vocabulary का ताल्लुक है, it is normally male that one wants to treat as being more general and thus in one sense more basic। तो इंग्लिश में more male ज़्यादा बेसिक लिया जाता है, उर्दू में भी इसी तरह और पश्तो में तो है ही। We can then rewrite the analysis of man, woman, boy, girl as, तो ये फिर वो analysis आ जाएगी। So this was all about it. If you try to add child to it, child is then plus human and minus adult. You can also add the other items, for example horse, mare, foal, sheep, ram and lamb। Let me translate it for you। आसान है, translate करते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। As for horse, stallion, mare, foal जो सारे horse की किस्में हैं, foal very young horse होता है, sheep जो मादा है, ram, eve या ewe जिसको कहते हैं, ram, ewe or lamb or bull, cow, calf, these and many other sets of words can be analyzed in the same way by substituting equine जिसका मतलब है related to horse, तो ये सारे equine हो जाएंगे। ovine related to sheep, तो ये सारे ovine हो जाएंगे। bovine related with cows, तो ये सारे आखिर वाले ये वाले bull, cow, calf ये bovine हो जाएंगे। As the case may be for human, जैसे हमने human का किया तो इसका भी हो सकता है, इसको डिटेल से डिस्कस नहीं किया। प्रॉब्लम्स क्या हैं इस एनालिसिस में? तो नंबर वन प्रॉब्लम तो ग्रेडिबिलिटी का है। ग्रेडिबिलिटी से मुराद ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि प्लस वाइट और माइनस वाइट, क्योंकि माइनस वाइट तो बहुत सारे हैं, तो ये तो ग्रेडिबिलिटी है। माइनस वाइट डजंट मीन ब्लैक, माइनस वाइट का मतलब है कि वाइट नहीं है, तो वाइट नहीं है तो फिर जरूरी तो नहीं है कि ब्लैक हो। दिस इज वन प्रॉब्लम। This is called gradable antonyms. White and minus white are gradable antonyms. You have studied it in anatomy, and if you don't remember gradable antonyms, I have shared one lecture. That lecture was for second semester, but I have shared it with you. You can find it out there. It is also there in your the study of language, so you find it out there. I will read it for you. Componential analysis has the advantage of clarity of meaning. ये तो इसका पॉजिटिव है कि इसमें मीनिंग क्लियर होती है, ये क्वालिटी ये क्वालिटी ये क्वालिटी। However, there are many problems in it. Problem इसमें है, the first problem is that gradable antonyms, पहला problem gradable antonyms का है। For example, white and minus white ये दो हैं। In this case, minus white cannot be called black. तो अब क्या करें? मसला है। Second problem is that of binary features. As I said, we say, for example, male plus male minus male. We are talking into, this is called binary features.
But sometimes we have the species names, for example, cat family. How will you differentiate lion from tiger and from leopard and jaguar and all these? With the help of binary features. This is quite difficult. The same is the case with the color terms. Binary features are not possible here because the features then will be countless. The same is the case with the types of metals. So let me read it for you, the second problem. Second, there are many lexical distinctions. Lexical बहुत सारे फर्क हैं which do not seem to be easily expressible. और इनको एक्सप्रेस करना मुश्किल है in terms of binary features. तो बाज़ binary features में मुश्किल होता है. Species names, नस्लों के नाम जैसे cat family ये species है. For example, our well-known challenge, ये एक जाना पहचाना challenge है, मुश्किल है to this approach, इस approach के लिए. What features distinguish members of cat family? Cat family की कौन सी features हैं, कौन से components हैं जो differentiate करेंगे from each other एक दूसरे से, इनको कौन से binary features हैं जो इनको differentiate करेंगे. Similar issues arise with color terms, जैसे कि हमने white की बात की, और जैसे कि और कलर्स हैं उनको डिफरेंशिएट करना. तो कलर को आप कैसे फीचर्स में डालेंगे. एक कलर को मसलन रेड और येलो है तो इसके फीचर्स कैसे बनाएं, मसला है. टाइप्स ऑफ मेटल एटसेट्रा, मेटल्स की किस्में हैं उनको कैसे कर. एंड हाउ टू डील विद सच केसेस. ऐसे केसेस से निपटने के लिए इट सीम्स दैट द नंबर ऑफ फीचर्स वुड नीड टू बी ऑलमोस्ट एज ग्रेट एज द नंबर ऑफ लेक्सिकल आइटम्स. तो अगर हम इनको फीचर्स में डालेंगे तो बेशुमार इतने फीचर्स हो जाएंगे जितने अल्फाज हैं. सो दिस इज द प्रॉब्लम. देयर इज द थर्ड प्रॉब्लम. द थर्ड प्रॉब्लम arises as we have in the case of kinship terms. kinship terms से मुराद है वो टर्म्स जो हम रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो बाज़ औक़ात बाज़ टर्म्स रिश्तेदारों में एक ज़बान में होते हैं, दूसरी ज़बान में नहीं होते. तो ये मसला इधर भी है. थर्ड, सम वर्ड मीनिंग्स कैनॉट बी एडेक्वेटली रिप्रेजेंटेड. बाज़ वर्ड्स मीनिंग रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता एज एन अनऑर्डर्ड बंडल ऑफ फीचर्स. अब देखें, हमने ये जो बंडल ऑफ फीचर्स बयान किए इसको हम इसकी ऑर्डर तब्दील कर सकते हैं. हम कह सकते हैं एडल्ट, ह्यूमन, मेल. हम कह सकते हैं मेल, ह्यूमन, एडल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ये तरतीब अगर आप रिश्तेदारों के नाम में तब्दील कर दें तो बड़ा मसला है. मसलन मदर्स, ब्रदर्स, स्पाउस, माँ की, भाई की बीवी. तो आपकी वालदा साहिबा की भाई की जो बीवी है अगर इसको उलट कर दें तो इसके तो मीनिंग्स ही तब्दील हो जाएंगी. तो ये अनऑर्डर्ड बंडल ऑफ फीचर्स लिखना मुश्किल है, whether binary or not, ख्वाह binary हो या binary ना हो. For example, many studies have been done concerning the semantic components of kinship terms in various languages. मुख्तलिफ स्टडी की गई जो रिश्तेदारों के नाम हैं उनके लिए. This is one domain, ये एक इलाका है, डोमेन है, in which the components need to be ordered or structured in some way, कि जिसमें components को तरतीब से होना चाहिए. मदर्स, ब्रदर्स, स्पाउस, वालदा की, भाई की बीवी. तो ये अगर आप तरतीब से लिखें तो ये बनेगा वन सेंस ऑफ आंट इन इंग्लिश. इंग्लिश में आंट कहलाता है. would probably not in most languages be called by the same term. इसी टर्म से इसको नहीं कहा जाएगा अगर आप इसको उल्टा कर दें स्पाउसेस, मदर्स, ब्रदर, तो इसमें तो इंग्लिश टर्म है ही नहीं. और अगर पैदा करें तो वो इससे डिफरेंट होगा. तो ऑर्डर्ड ये मसला है और इतना काफ़ी है, इसको आप छोड़ दें. Fourth, we need to ask how many features would be needed to describe the entire lexicon अल्फाज of a single language. एक सिंगल लैंग्वेज है, उसके पूरे
इंटायर लेक्सिकॉन को बयान करने के लिए कितनी फीचर्स बतानी पड़ेगी. So it's quite impossible. Binary feature analysis can be very efficient within certain restricted semantic domains. बाज restricted semantic domains में तो ठीक है, लेकिन सब में नहीं होता. But when we try to compare a wider range of words, बहुत सारे words हैं, तो फिर compare करें, the semantic features needed would be too many. तो semantic features जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. ये जो बाद में आपको नज़र आ रहे हैं, ये आप छोड़ दें, ये वैसे आपकी मालूमात के लिए था, ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है. अब आप ज़रा अपने इस कोर्स कंटेंट्स को ज़रा देखें कि हम कहाँ पहुँचे. ये हमारा एक टॉपिक था, ये हमने शुरू में किया था. अर्ली थ्योरीज ऑफ मीनिंग, टाइप्स ऑफ मीनिंग्स, सेमेंटिक फील्ड, ये हम कर चुके हैं. कंपोनेंशियल एनालिसिस बीच में हमने छोड़ा हुआ था, यह भी किया. और ये जो आपको नज़र आए सेंस रिलेशंस, लेक्सिकल रिलेशंस, एपोनिमी, सिनोनिमी, एंटोनिमी, होमोनिमी और पॉलिसेमी, तो ये हम कर चुके हैं. और जैसे मैंने यहाँ से आपको बताया, तो ये अगर आप देखें अपने इस कोर्स कंटेंट्स को, तो ये हम कर चुके हैं. टाइप्स ऑफ मीनिंग कर चुके हैं, सेमेंटिक्स कर चुके हैं, कंपोनेंशियल एनालिसिस अभी हमने किया, और सेंस रिलेशंस हम पहले ही कर चुके हैं. ये सेमेस्टर नंबर 2 का काम है और मैंने आपके साथ इसकी वीडियोस शेयर किए हैं, उसमें भी सेमेंटिक्स है. तो उसमें हमने इसको किया था, सेंस रिलेशन, लेक्सिकल रिलेशंस, एपोनिमी, सिनोनिमी, एंटोनिमी, होमोनिमी और पॉलिसेमी. तो ये आपके पास रिकॉर्डेड भी मौजूद है, आपके पास बुक भी मौजूद है, ये वहाँ से हमने किया हुआ है. सिंटैक्टिक सेमेंटिक्स हमने इसमें ये चीज़ें की. कंट्राडिक्शंस ये हम कर चुके हैं, एम्बिग्यूइटी कर चुके हैं, सेमेंटिक एनोमली कर चुके हैं, इंटेलमेंट पे लेक्चर मौजूद है, प्री सपोजिशन पे मौजूद है. तो ये ऑलरेडी वी आर डन विद इट. ये अगर टोटल आप देखें तो इसके साथ टोटल हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 बनता है. तो 8 क्वेश्चंस हैं, वेरी इजी. मेरे ख्याल में ये पेपर सबसे आसान है आपके लिए, तो इसको सीखें. लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. थैंक यू एंड गुड लक.